Good afternoon, student. In the last class, we have discussed about the physical features of India. There are different landforms like hill, mountain, plateau, coastal plain, desert, northern plains, and how are they formed? वो कैसे बनते हैं हमने उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था. Now we are going to start that India is a large landmass formed during the different geological period. Geological period means the different kinds of ages. जियोलॉजिकल पीरियड लाइक आपका आज से नियर अबाउट 1000 ईयर्स बिफोर आपकी अर्थ के नीचे कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, कैसे फोर्सेस हुए, आज कौन सी फोर्सेस आपकी अर्थ के नीचे हो रही हैं, दैट इज़ द जियोलॉजिकल एरा, जियोलॉजिकल पीरियड विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. कोई भी प्रोसेस होता है जो अर्थ के नीचे जो भी एक्टिविटीज़ आपकी फॉर्म होती हैं वो आपकी रिलीफ को इफ़ेक्ट करती हैं, उस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेशंस देती हैं. रिलीफ दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लैंड, a topography like your mountain, like your plateau, so different kind of landforms. Besides geological formation, a number of process such as weathering. Weathering means that is the rock convert into the pebbles. We have a big rocks और जब वो छोटे छोटे pebbles में convert हो जाती हैं that is called the weathering. Erosion, erosion through wind, through water, लाइक कभी कोई पेबल्स टूट के छोटे छोटे नोड्यूल्स में, पेबल्स में, कंकड़ में, पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दैट इज़ कॉल्ड द इरोजन. इरोजन कैन बी डन थ्रू द विंड एंड द वाटर. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ द इरोजन. एंड द डिपोजिशन मीन डिपॉजिट, जमा होना, एक जगह पर उसका जमा होना. लाइक अगर हिमालय से गंगा निकल कर आती हैं तो जब वो प्लेन्स में आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे नोड्यूल्स, सैंड, पेबल्स लेकर आती हैं और उनको प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं, विच क्रिएट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical feature. The different scientists has studied on this earth formation. So सबकी अलग अलग theories हैं. So we will discuss about the Alfred Wegener theory, that is a theory of plate tectonic. This is very important. I'm explaining you that Alfred Wegener. First of all, you will write that who was the father of theory of plate tectonic. That is, the name is Alfred Wegener. So according to this theory, the crust, your earth is made up of 3 layers. In the last class we have discussed about that. The earth is made up of 3 layers. That is crust, mantle and core. Crust is the upper part, mantle is the middle part, and the core is the inner part. So we know that we have the 2 types of crust. One is the continental crust and one is the oceanic crust. Continental crust, which lies on the earth's surface above 35 below 35 kilometers still, एंड देन समुद्र के नीचे भी तो ज़मीन होती है. जब आप नदी में नहाने जाते हैं तो उसमें आप पैरों में आपके रेत लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ओशनिक क्रस्ट. ये थोड़ी हेवियर होती है, इसमें जितना भी सिल्ट मटेरियल होता है वो सब सेटल डाउन हो जाता है. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दीज आर लिटिल बिट लाइट, तो इसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल से आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. ओके, नाउ according to this theory, the crust upper part of the earth has been formed out of the 7 major and some minor plates. 7 major plates, which are the 7 major plate that I am giving you with the map. So these are the 7 major plate. You can see there: Eurasian plate, Pacific plate, North American plate, South African plate, Indo-Australian plate, and the Eurasian plate. These were the 7 major plate. You can see there is the line. There are the some lines like these. What are these? ये lines क्या हैं? So we will discuss about it now. So the movement of the plate result in the building up of the stress with the plate and the continental rock above. तो आपकी अर्थ के नीचे जितने भी मूवमेंट्स होती हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो रीज़न होती है आपकी अर्थ के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन का. यू नो दैट द इंडिया and other continental plates, like India is the part of the Asian country, but जो आपकी formations होती हैं plate का, उसके लिए 3 activities responsible होती हैं: folding, faulting and volcanic activity. Broadly, these plate movement are classified into 3 types, like while some plates come toward. Okay, look at the diagram first. This is the 3 activities. First is a convergent boundary. What happen in the convergent boundary?
कि इसमें प्लेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सो जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे रह जाती है और हल्की प्लेट जो होती है, लाइट प्लेट जो होती है, वो ऊपर आ जाती है। सो वी कैन से कन्वर्जन बाउंड्री से आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। द सेकेंड इज़ द डाइवर्जन बाउंड्री, जो आपकी एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे से अलग होती हैं तो इनके बीच में स्पेस आ जाता है। यू कैन सी देयर स्पेस आ जाता है। सो थ्रू दिस स्पेस वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिसमें मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। द थर्ड इज़ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दैट एक दूसरे के साथ ही खिसकती हैं, लेकिन एक ऊपर खिसक जाती है और एक ट्रांसफॉर्म होकर अपनी जगह से नीचे आ जाती है। जब भी आपकी प्लेट खिसकेगी अपनी जगह से तो आपकी अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जो अर्थक्वेक है, जो जापान है, वो आपकी ट्रांसफॉर्म बॉडी पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से ही वहाँ पे आपके अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की प्लेट पर लाई करता है, उस पर ही है, तभी वहाँ पर आपके अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं। ओके, वन थिंग मोर क्लास that I am going to tell you that is very interesting, that is not in your book, तो listen it. When the earth movement, जब आपकी अर्थ का मूवमेंट होता है, तो जो आपकी अर्थ थी पहले इट वॉज द आग का गोला, इट वॉज अ बॉल ऑफ फायर। धीरे धीरे ठंडी होती हुई ड्यू टू द कूलिंग प्रोसेस आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जैसे आप टी देखते हैं, कप ऑफ टी होता है जिसमें आपकी चाय होती है, नीचे से तो वो गर्म होती है, लेकिन उसके ऊपर आपकी एक ठंडी सी लेयर बन जाती है जो मलाई होती है, तो एक हार्ड लेयर बन जाती है। सो द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ रैपिडली कूल्स डाउन। जैसे ही मोल्टन मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है तो आपका अपर सरफेस ठंडा होने लग जाता है और लोअर पार्ट आपका स्टिल गर्म रहता है ड्यू टू द एक्टिविटी, ड्यू टू द फोर्सेस अंडर द अर्थ सरफेस। सो जब आपकी अर्थ के ऊपर मैग्मा आ जाता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के साथ, देयर वाज क्रैक, उसमें कुछ क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जब वो ठंडी हो जाते हैं तो उसमें कुछ क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दीज फोर्सेस। जितने भी कंबाइंड कॉन्टिनेंट हैं, आपको पता है आपकी अर्थ के जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, सब पहले एक ही थे, सब एक दूसरे के साथ लाइक वो आपकी पजल गेम होती है, पजल गेम की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेटर ऑन ड्यू टू दीज फोर्सेस ये क्रैक्स की वजह से अलग होने शुरू हुए, और जब ये अलग होने शुरू हुए तो नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, एक ऊपर की तरफ चला गया पार्ट और एक नीचे की तरफ आया। तो नॉर्दर्न पार्ट उसको हमने बोला लूरेशिया, LURASIA, लूरेशिया, और सदर्न पार्ट जिसको हमने क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड। अब लूरेशिया में कौन कौन से पार्ट आए आपके लूरेशिया में, कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए? दैट इज़ नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, और सदर्न कॉन्टिनेंट यानी गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एशिया का पार्ट है, बट इट इज़ कम्स इन द गोंडवानन एरिया। वाई सो? इंडिया इज़ द सब कॉन्टिनेंट। वाई वी कॉल इट द सब कॉन्टिनेंट? सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमने एशिया को भी कॉन्टिनेंट बनाया, हमने इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला? बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका अपना क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी अपनी वेदर कंडीशन, उसका अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका अपना कल्चर, उसकी अपनी लैंड फीचर, फिज़िकल फीचर, हर चीज़ जो है अपनी है, और काफ़ी वाइड स्केल पर ये वैरिड करती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। दैट्स वाई इट इज़ द सब कॉन्टिनेंट। अफ्रीका और इंडिया, जब आप इन दोनों को मैप में देखते हैं, लुक एट दैट, आप मैप में देखते हैं दिस अफ्रीका एंड इंडिया, दीज टू पार्ट्स वर joined, but due to some cracks, due to some these forces, they get separated. इंडिया आपका अफ्रीका से सेपरेट हुआ और वो जाकर ऊपर एशिया से जाके यूरेशियन प्लेट में जाके मिल गया, और यूरेशियन प्लेट में जाके मिलने के बाद यहाँ पे आपका हिमालयाज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो स्पेस आया उसके बीच में वाटर बॉडीज़ ने कवर कर लिया, और उस वाटर बॉडी को क्या नाम दिया गया? टेथिस सी। इसके बारे में डिटेल में आपकी बुक में है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो टेथिस सी बना इसका, जिससे आपका हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। देन यू कैन सी देयर अंडर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द हाई प्रेशर 3 movements were formed. So 3 movements I told you. Which movement? Conversion, diversion and transform. Due to these forces plates get separated. So conversion, जिससे आपकी
हैवी प्लेट और लाइट प्लेट्स का इशू रहता है। हैवी प्लेट अपर एंड द लाइट प्लेट डाउन में रहती है, जैसे आपके हिमालयाज़ का या माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। डाइवर्जन बाउंड्री, जिसमें आपकी दोनों सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बहुत, इसमें आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, जब प्लेट्स अपनी जगह से खिसक जाती हैं, जिससे आपके अर्थक्वेक अकर होते हैं। जापान इज़ द एग्जाम्पल जहाँ पे आपके ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। सो दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ दिस पार्ट। दिस इज़ अ पार्ट 2। थैंक यू।